to the interference of light. Light has properties similar to sound waves. It will help you understand its interaction with object close to its own wavelength. Interference of light waves occurs when two or more waves meet. When two or more waves superimpose to each other. That is called the interference of light. Interference is two types, constructive and destructive. Okay. In the destructive interference, the waves will phase and the trough of the other and will cancel each other out partially or completely. थॉमस यंग ने इसको एक्सप्लेन किया था. He is the Thomas Young. Thomas Young was the first to describe property and interference of light. Light, because of its wave property, will have constructive and destructive interference. It explains the wave nature of light. He sent sunlight through two narrow slits and recorded an interference pattern on a screen behind the two slits. And this Young's double slit experiment explained the wave nature of light. The double slit experiment shows how light waves interfere with each other. There is a pattern of bright and dark fringes on the screen, like this. ये देखो सामने स्क्रीन पे हमें दिख रहा होगा. Light is passing through the source of. There is a source of light through which light is passing, and there is a double slit through which light is crossing. And this is the slit S1, S2. Both light waves are superimposed to each other. If same phase of light are superimposed, then it gives maximum intensity, and if opposite phase of light are superimposed, then it gives minimum intensity of light. Double slit experiment. The dark fringes are areas where the crest of one waves match up with the trough of the other, thus creating destructive interference. Requirement for interference. In order for an interference pattern to be stable, the wave must be emitted from a single consistent wavelength or frequency, must maintain a constant phase relationship with each other. There is some question related to the interference of light. The double slit experiment was first conducted by, इसका आंसर होगा Thomas Young, ना? Thomas Young. Okay. Bright fringes are formed when dash interference occur. बताओ bright fringes कब बनता है? Constructive की destructive interference? Constructive. Okay. तो इसका आंसर होगा constructive. Dark fringes occur when the crest of one wave match with the. No. Dark fringes occur when the crest of one wave match with the trough of another wave. ना डार्क फ्रिंजेस में दोनों का फेज अपोजिट होता है ना, मतलब पहले वेव का अगर हम क्रिस्ट ले रहे हैं तो दूसरे वाले वेव का क्या होगा? ट्रफ होगा. ओके. व्हाट डज द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शो? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? इट शो द wave nature of light. It show the wave nature of light. Okay. How does constructive interference occur? This is due to the maximum intensity of light. Okay. How does destructive interference occur? Due to the yes, बिल्कुल सही. Minimum intensity of light. What is one requirement for interference? Monochromatic source of light. ना? हाँ. लाइट क्या होना चाहिए? लाइट मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए. ओके. व्हाट डज इट मीन टू हैव ए कांस्टेंट? व्हाट? हाँ. व्हाट डज इट मीन टू हैव ए कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप? कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? मतलब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट फेज का मतलब फाई क्या है? फाई इज कांस्टेंट. Okay, phi क्या होगा? Constant. Light has properties similar to sound waves. Okay, light has properties similar to sound waves. In order for an interference pattern to be stable, light must be emitted from a
Okay, slate. Okay, correct. And monochromatic light. And the monochromatic light. ठीक है, तो ये तो था, दिस इज अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. अब देखो, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं. आज हम लोग को डिस्कस करना है फ्रिंज विड्थ बिटवीन द टू फ्रिंजेस. एक मिनट, कनेक्ट नहीं हो रहा. फ्रिंज विड्थ. Fringe width between two fringes. Fringe width between two fringes due to interference of light. तो क्या ये आज का टॉपिक है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये आता है एग्जाम में. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसको अच्छे से कर लेना. एग्जाम में 99% चांस है जरूर आएगा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल we draw the diagram. We consider monochromatic source of light. Suppose this is the monochromatic source of light. And light is passing through the slit. There are two light which is passing through the slit. ठीक है, ये लाइट स्लिट से पास कर रहा. And we consider a screen where it give bright fringes and dark fringes. ठीक है, ये देखो, सपोज ये इस पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज दे रहा है. ठीक है, इट इज गिवन ब्राइट फ्रिंज एट दिस पॉइंट. और ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है, और दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस है D. ठीक है, और दोनों स्लिट के सेंटर पॉइंट से स्क्रीन को जस्ट अपोजिट पॉइंट पे हम मिला देते हैं. ये देखो, एक मिनट चलो, ये देखो, दोनों स्लिट का जो सेंटर पॉइंट है इसको स्क्रीन के जस्ट अपोजिट पॉइंट से हम मिला देना, और इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रल. दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा. ओके, और इस ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल मैक्सिमा से मान लो डिस्टेंस कितना है x.
and this is the distance of the nth fringe from the bright fringe. Okay, this is the distance of the nth bright fringe from the central maxima. ये जो C जो है, C को बोला जाता है सेंट्रल मैक्सिमा। स्क्रीन के सेंटर पे ये बिल्कुल बन रहा है। ओके, और दोनों स्लिट के बीच का जो स्मॉल डिस्टेंस है, दिस इज डी, स्मॉल डी। ये दोनों स्लिट के बीच का ये स्मॉल डिस्टेंस है, दिस इज डी। ठीक है, और यहां से जो लाइट निकल रहा है, सपोज उस लाइट का वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। ओके, तो ये थोड़ा तुमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स is d, and distance between slit and screen is capital D। ओके, तो ये पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देना इसके बारे में। अब देखो, अब होता क्या है, हमें फ्रिंज विड्थ निकालना है। फ्रिंज विड्थ बेसिकली है क्या, जैसे ये ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, तो ब्राइट के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, ब्राइट के बाद डार्क मिलेगा। ठीक है, ब्राइट के बाद क्या होगा, डार्क, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से क्या मिलेगा, ब्राइट। ठीक है, तो हाँ, अल्टरनेट। फिर इसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, फिर से तुम्हें मिलेगा डार्क, और फिर इसके बाद फिर तुम्हें क्या मिलेगा, फिर से तुम्हें ब्राइट मिलेगा। ठीक है, तो हमको दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ऊपर वाले ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मैंने क्या लिया है, x, और उसी के जस्ट नीचे दूसरा वाला जो ब्राइट फ्रिंज है, उसका डिस्टेंस हम लोग लेंगे xn-1। ओके ओके, तो हमें ये डिस्टेंस x निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ये देखो, अब देखो, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लिया जा रहा है, दिस इज BS1 A, और दूसरे वाले ट्रायंगल को हम लोग मानेंगे BS2 A'। ठीक है, तो हमें इन दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच का क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ निकालना है। ठीक है, देखो फ्रिंज विड्थ होता क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेम फ्रिंजेस, the distance between the two same fringes is called fringe width। okay, fringe width। अब देखो, तो अगर हमें फ्रिंज विड्थ निकालना है, तो पहले हम लोग डिस्टेंस x निकालेंगे, फिर xn-1 निकालेंगे, और xn में से xn-1 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो b और b डैश के बीच का जो डिस्टेंस जो आएगा, दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ। ओके, तो सबसे पहले देखो, हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल S1BA, ट्रायंगल S1BA, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालेंगे। देखो पाथ डिफरेंस क्या होता है,
ये देखो, जैसे सपोज मान लो ये S1 से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये S1 से देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया ऑन द लाइट वेव्स S2b, और जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है पॉइंट हमारा क्या है, दिस इज M, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि S1b निकालेंगे, फिर S2b निकालेंगे, और S2b में से S1b को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो S2m जो आएगा, ये S2m जो आएगा, दिस इज द पाथ डिफरेंस, ओके। S2m जो आएगा, दिस इज द पाथ डिफरेंस, एंड यू नो दैट दिस पाथ डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये जो पाथ डिफरेंस जो होता है यही कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पाथ ऑफ द लाइट वेव S1b, पाथ ऑफ द लाइट वेव S2b, और फिर S2b में से S1b को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल S1BA, फ्रॉम ट्रायंगल S1BA, ओके। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा S1b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू द AB स्क्वायर प्लस S1A स्क्वायर, ओके। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, S1b मिल जाएगा, ठीक है। S1b स्क्वायर इज इक्वल टू AB। व्हाट इज AB? देखो यहाँ पे AB जो होगा, जैसे ही बताओ ये डिस्टेंस, इस पॉइंट को O मान लेते हैं, OS1 क्या है, D/2, और ये OS2 क्या है, ये भी तुम्हारा D/2 है, ठीक है। तो इसके जस्ट अपोजिट ये भी क्या होगा, D/2, और इसके जस्ट अपोजिट ये भी क्या होगा, दिस इज D/2, ओके। और जरा बताओ B to A, फ्रॉम B to A हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज x माइनस D/2 ना। B से A के बीच का डिस्टेंस निकालने क्या करेंगे, x में से D/2 को माइनस कर देंगे। फ्रॉम B to A डिस्टेंस इज x माइनस D/2। तो मतलब यहाँ AB की जगह क्या पुट करेंगे, दिस इज x माइनस D/2 टू द होल स्क्वायर प्लस S1A। तो देखो यहाँ S1A किसके इक्वल है, S1A D के इक्वल है, तो प्लस D स्क्वायर, ओके। तो बताओ दिस S1B, तो ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस x माइनस D/2 टू द होल स्क्वायर पावर 1/2, ओके। और इसमें से D स्क्वायर कॉमन ले लो, तो D स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो D स्क्वायर जब कॉमन होगा तो स्क्वायर से 1/2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 प्लस x माइनस D/2 टू द होल स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, और ये टू द पावर क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज 1/2, ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का नाम सुनो, मैथ्स में पढ़ाया जाता है, बाइनोमियल थ्योरम, ओके। कोई बात नहीं, ये क्लास 11 में एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। देखो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि जैसे अगर मान लो 1 प्लस एक्स टू द पावर n दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n दिया हुआ है, इस पावर को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस n इंटू एक्स, दिस इज 1 प्लस n इंटू एक्स, ओके। तो पावर को क्या करते हैं, पावर को वेरिएबल x में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, x में करेंगे, ठीक है। तो अब इसी तरह देखो यही सेम चीज इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा S1B इज इक्वल टू D, और ये आ जाएगा 1 प्लस x माइनस D/2 टू द होल स्क्वायर, और बताओ अपॉन हो जाएगा, दिस इज 2D स्क्वायर, ओके। तो ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज S1B, ठीक है, S1B आ गया। अब इसी तरह बताओ, अब इस डायग्राम से हम लोग क्या निकालेंगे, अब इस डायग्राम से हम लोग S2B निकालेंगे, ठीक है।
और S1B निकल गया। इसके बाद हम लोग S2B निकालेंगे। तो देखो S2B, फिर से हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो इस बार हम लोग को क्या निकालना है, S2B निकालना है। तो S2B निकालने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, S2 S2BA डैश, S2BA डैश, ट्रायंगल ट्रायंगल S2BA डैश। हाँ ये बड़ा वाला, हाँ बड़े वाले ट्रायंगल से S2B निकालेंगे और फिर S2B में से S1B को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये S2M आ जाएगा और ये S2M जो होगा ये क्या होगा, दिस इज द पाथ डिफरेंस। ओके, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, यू नो दैट। तो बताओ ये तुमको मिल जाएगा, दिस इज S2B स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू द BA डैश स्क्वायर और प्लस S2A डैश स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये S2B स्क्वायर जो होगा, बताओ BA डैश, BA डैश किसका इक्वल है, ध्यान से देखो BA डैश, ये बताओ B से C का डिस्टेंस कितना है x, और C से A डैश का डिस्टेंस कितना है d/2। तो B से A डैश के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, x प्लस d/2 होगा। ओके, तो इट मीन्स दिस इज x प्लस d/2 टू द होल स्क्वायर प्लस S2A डैश, S2A इक्वल है दिस इज d स्क्वायर। ठीक है ना, S2A डैश देखो, S2A डैश d का इक्वल है ना। तो ये आ जाएगा S2B, S2B कितना आएगा, दिस इज d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 टू द होल स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो बताओ S2B, तो S2B आ जाएगा, d स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, d स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर कितना आएगा d, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस x प्लस d/2 टू द होल स्क्वायर। और अब बताओ ये अपॉन क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा ना, और टू द पावर कितना है 1/2। फिर से क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो देखो पिछले वाले की तरह आ गए, जैसे पिछली बार हम लोग निकाले थे 1 प्लस ये क्या आ गया x प्लस d/2 होल स्क्वायर, और बताओ नीचे कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर ना, दिस इज 2d स्क्वायर। तो बताओ ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज S2B। ठीक है, S2B आ गया, S1B आ गया। अब बताओ अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ये पाथ डिफरेंस निकालना है S2M। हम लोग को ये वाला पाथ डिफरेंस निकालना है S2M। तो S2M निकालने के लिए क्या करेंगे, S2B में से S1B को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस S2M, S2M निकालने के लिए क्या करेंगे, S2B में से S1B को माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा S2M। तो S2B कितना आया था, व्हाट इज S2B, दिस इज D 1 प्लस ठीक है, और अपॉन है दिस इज 2D स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस S1B, S1B की जगह क्या रखेंगे D प्लस xn माइनस d/2 टू द होल स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर में। ओके, तो देखो अब जरा ध्यान से देखो, इसमें से D कॉमन निकल रहा है, D को कॉमन ले लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1 प्लस
ठीक है। तो यहाँ पे तो बताओ ये +1 और -1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये देखो +1 -1 कैंसिल, और फिर उसके बाद नीचे से देखो, नीचे से कुछ कॉमन निकल रहा है, नीचे से 2d² कॉमन निकल रहा है। तो ये हो जाएगा d/2d²। तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज xn प्लस d/2 टू द होल स्क्वायर माइनस xn माइनस d/2 टू द होल स्क्वायर ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा s2m, दिस इज 1/2d। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो ये हो जाएगा xn² प्लस d²/4 प्लस 2xn इंटू d/2, ठीक है। और ये हो जाएगा xn² प्लस d²/4 माइनस 2xn इंटू d/2, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो आई थिंक xn² xr कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो d²/4, d²/4 भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, s2m, दिस इज 1/2d, और यहाँ ब्रैकेट में बचेगा xn इंटू d प्लस xn इंटू d। तो ये तुमको मिल जाएगा s2m। तो व्हाट इज s2m, दिस इज 2xn इंटू d अपॉन 2d ना। देखो तुमसे 2 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, दिस इज s2m। ठीक है, ये आ गया। और ये जो s2m है, इस s2m को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। ये जो s2m है, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, ओके, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज पाथ डिफरेंस। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है। तो जरा ये बताओ, ये पॉइंट बी पे, ये देखो पॉइंट बी तुम्हें दिख रहा होगा। पॉइंट बी पे हम लोग को ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है ना। पॉइंट बी विल गिव ब्राइट फ्रिंज। और जरा ये बताओ, किसी भी ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है। ये मैंने कंडीशन बताया था ना ब्राइट फ्रिंज का। कंडीशन मैंने बताया था ना ब्राइट फ्रिंज का। कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव एन लैम्डा, ठीक, बिल्कुल सही। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, ये s2m और p दोनों क्या है, दोनों पाथ डिफरेंस है ना, दोनों पाथ डिफरेंस है। ओके, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो बताओ ये तुमको मिल जाएगा, दिस इज xn इंटू डी अपॉन कैपिटल डी, और बताओ ये किसके इक्वल है, दिस इज एन लैम्डा, ओके। x निकल जाएगा, x निकल गया। तो x इज इक्वल टू आएगा एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ओके। ये आ गया x। x को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज।
यहाँ पे x का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आता है, तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कहाँ से लिया जा रहा है, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। ओके, हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये x आ गया। इसी के जस्ट नीचे, इसी के जस्ट नीचे जो ब्राइट फ्रिंज जो b डैश मिल रहा है, ये जो b डैश जो है b का क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। ये जो b डैश जो है दिस इज द कॉन्जिक्यूटिव ऑफ b, मतलब b के लिए अगर हम nth फ्रिंज ले रहे हैं तो b डैश के लिए क्या होगा, n-1 होगा। क्यों, अगर b के लिए nth फ्रिंज ले रहे हैं तो b डैश के लिए क्या होगा, n-1 फ्रिंज होगा। हाँ, तो इट मीन्स distance of bright fringe b dash, distance of bright fringe b dash from central maximum। okay, तो ये क्या होगा, xn-1, और ये जो xn-1 जो आएगा दिस इज n-1 लैम्डा इंटू डी, और कौन क्या होगा, दिस इज स्मॉल डी। ओके, ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें इन दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो गैप है, ये देखो, अभी मैंने डायग्राम तुम्हें दिखाया था, ये देखो, ये देखो, ये जो दोनों ब्राइट फ्रिंज दिख रहा है, इन दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच का ये जो गैप है, इसी को क्या बोला जाता है, फ्रिंज विड्थ बीटा। बीटा, ओके, बी और बी डैश के बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ बीटा। ओके, तो बीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा निकालने के लिए ये जो डिस्टेंस x आया था, इसका जस्ट कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस xn-1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज x, x कितना आया था, n लैम्डा डी स्मॉल डी, और xn-1 दिस इज n-1 लैम्डा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, तो दोनों को माइनस कर दो। तो देखो, दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू आएगा, तो देखो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी क्या हो गया, कॉमन, एन और एन क्या हो गया, कैंसिल। तो बताओ क्या बचा, व्हाट इज दिस, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, एंड दिस इज द फ्रिंज विड्थ। ओके, यही तुम्हें प्रूव करना था, एग्जाम में यही प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, ओके, ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। केस 1, when apparatus is immersed in a liquid, when apparatus is हाँ immersed in a liquid। ठीक है, तो जरा बताओ, किसी और ऑपरेटर्स को जब हम लिक्विड में अगर इमर्स करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। इट मींस लैम्डा डैश, दिस इज लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगा।
ओके, तो इट मीन्स फ्रिंज विड्थ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ भी तो चेंज हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बीटा डैश, तो ये तुमको मिल जाएगा लैम्डा इंटू डी अपॉन म्यू इंटू डी। ठीक है, तो बताओ बीटा डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। म्यू क्या है, व्हाट इज म्यू, म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और देखो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी किसके इक्वल था, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, दिस इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो देयरफॉर डैश, बीटा डैश कितना आएगा, दिस इज बीटा अपॉन म्यू। ओके, तो ये आ गया बीटा अपॉन म्यू, दिस इज फ्रिंज विड्थ। इट मींस फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस हाउ मच टाइम्स, म्यू टाइम्स, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस म्यू टाइम्स। ओके, म्यू से डिवाइड हो रहा है ना, तो म्यू से डिवाइड हो रहा है तो इट मींस फ्रिंज विड्थ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, हाँ ठीक है। तो अब देखो अगला केस, केस नंबर 2। तो देखो केस नंबर 2 क्या है, distance between the two dark fringe, sorry, distance of the dark fringe, distance of the dark fringe। जैसे ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस अभी मैंने बताया था ना, ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या था, ये देखो, ये बीटा नहीं है एक्स, ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, हाँ एक्स, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ तो अलग चीज है, फ्रिंज विड्थ तो जो होता है वो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस होता है, लेकिन ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द डार्क फ्रिंज फ्रॉम फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, तो देखो इसका जो डिस्टेंस जो x होगा, दिस इज इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा इंटू डी अपॉन होगा स्मॉल डी, लैम्डा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, ये आ गया, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द डार्क फ्रिंज। ठीक है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रिंज, n का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रिंज। सपोज जैसे अगर मान लो बोल दिया मैंने फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज मतलब n इज इक्वल टू 1। सपोज मान लो मैंने बोल दिया सेकंड डार्क फ्रिंज, तो n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर मान लो मैंने दिया थर्ड डार्क फ्रिंज, तो n इज इक्वल टू 3। ओके, आगे समझ में ना, ओके ठीक है, तो ये था डिस्टेंस। ओके, तो देखो इसमें मैंने सारा कंडीशन बता दिया, सारा मैंने केसेस बता दिया। अब इस पे देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10.6 स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें। A beam of light consisting of two wavelengths 650 nanometer and 520 nanometer is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment. Question number A, find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maxima for wavelength 650 nanometer। ठीक है, तो A पार्ट निकाल लो, फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, तो देखो, तो तुम्हें x निकालना था ना फर्स्ट पार्ट में, तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, n कितना दिया हुआ था 3, लैम्डा कितना दिया हुआ था, व्हाट इज लैम्डा 650 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 0, 3 5 जा 15 और ये 19। ओके,
एंड दिस इज आंसर। ओके, सही है। अब इसी तरह अब बी पार्ट जरा करो, कैसे करेंगे? हम्म क्या निकालना है? लिस्ट डिस्टेंस निकालना है ना। तो लिस्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? सी से। लिस्ट डिस्टेंस तुम्हें कहाँ से निकालना है? सेंट्रल मैक्सिमा से, ठीक है। तो देखो लिस्ट, तुम्हें पता है कि यहाँ पे स्क्रीन पे कितने फ्रिंजेस मिल रहे हैं? दो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे तुमको दो फ्रिंज मिल रहा है, पहला बी मिल रहा है और सपोज दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला बी डैश है। ओके, तो लिस्ट डिस्टेंस किसका होगा? बी का होगा कि बी डैश का होगा? मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस किसका होगा? फ्रॉम सी, बी डैश का होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है, दिस इज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो बी डैश का जो डिस्टेंस जो होगा ये तुम्हारा क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो देखो अच्छी तरह बताओ, यहाँ पे तुमको दो दो वेवलेंथ दिया हुआ है, 650 भी दिया हुआ है और 520 दिया हुआ है। तो 520 किसको लेंगे और 650 किसको लेंगे? हम्म नो, गलत। जो सबसे ऊपर वाला होता है उसका वेवलेंथ कम होता है। देखो उसके पीछे रीजन क्या है। जैसे तुम्हें फार्मूला पता है, P इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन एन होगा। तो जरा ध्यान से देखो, लैम्डा जो है वो एन की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एन अगर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज अगर ज्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ कम होगा। इट मीन्स ऊपर वाले का वेवलेंथ कम है, 520 नैनोमीटर, और नीचे वाले का वेवलेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। आया समझ में? क्योंकि एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो एन किसका ज्यादा है? नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऊपर वाले का ज्यादा होगा। ओके, तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला तुम्हें पता है। तो देखो, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज द लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। अब जरा बताओ, ये दोनों जो ब्राइट फ्रिंज जो है वो कोइंसाइड हो रहा है। कोइंसाइड होने का मतलब समझी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोइंसाइड? मिल रहे हैं, बिल्कुल सही। कोलैप्स हो रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हाँ, तो जैसे हम बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो बताओ डी बी का डिस्टेंस क्या होगा? फॉर्मूला पता है, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होता है। ओके, तो बताओ, तो एन बी वाले का, बी वाले का एन कितना लेंगे? बी वाले का एन नहीं पता है तो इसको एन मान लेते हैं। और बताओ बी वाले के लिए लैम्डा कितना है? 520 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। अब इसी तरह बी डैश का निकाल लो, बताओ बी डैश का कितना होगा? तो ऊपर वाले का एन ले रहे हैं तो नीचे वाले, ऊपर वाले का एन ले रहे हैं तो नीचे वाले का क्या होगा? एन माइनस वन होगा ना, इंटू 650 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ आर coincide, both bright fringe are coincide, both bright fringe are coincide। ओके, तो दोनों ब्राइट फ्रिंज coincide हो रहा है। coincide होने का मतलब क्या हुआ? coincide होने का मतलब कि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है। ओके, तो बताओ दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है तो n इंटू 520 d अपॉन स्मॉल डी, दिस इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 650 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, तो बताओ डी अपॉन स्मॉल डी क्या हो गया? कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल। और बताओ ये 52 65 कैंसिल होगा, आई थिंक कैंसिल होगा ना 13 से। 13 फोर जा 52 और 13 फाइव जा 65। ओके, 4 इंटू एन और ये हो जाएगा 5n माइनस 5। ओके, तो देयर फोर n इज इक्वल टू क्या आएगा? n इज इक्वल टू 5 आएगा, ठीक है। तो देखो ये n इज इक्वल टू आ गया, n इज इक्वल टू 5। ओके, तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो मिनिमम डिस्टेंस किसका निकालेंगे? बी डैश का ना।
तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ बी डैश, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ बी डैश, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, एन निकल गया, एल तो हमने निकाल लिया, एन कितना है, तो बी डैश का डिस्टेंस, हाँ तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन माइनस वन लैम्डा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, एन की जगह क्या पुट करेंगे 5, और बताओ लैम्डा कितना है 650 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, 4 से इंटू कर देंगे, 4 से इंटू करेंगे तो बताओ 4 5 जा 20, और ये कितना हो जाएगा 26, हाँ तो ये क्या आ गया, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, ओके, नैनोमीटर, एंड दिस इज फाइनल आंसर, ओके, इज इट क्लियर, तो ये फाइनल आंसर हो गया। Hello, myself Prashant Kumar Srivastava. Please like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much.